اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ اور تانگا کار سے زیادہ اونچی جگہ پر تھا۔ اچانک وہ کار کی روشنی میں آ گیا اور عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل اچھی طرح دیکھ لی، لیکن لباس سے وہ کوئی مزدور یا کم حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا اور سر پر فلیٹ ہیٹ، داڑھی سے معمر معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ بالکل سفید تھی۔ اس نے جلدی سے فلیٹ ہیٹ کا گوشہ چہرے پر جھلکا دیا اور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ شاید گھوڑے کے ساز میں کوئی خرابی آ گئی تھی جسے تانگا والا نیچے کھڑا درست کر رہا تھا۔ عمران نے رفتار اور کم کر کے خوامخواہ ہارن دینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کترا کر بھی نکل سکتا تھا۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ کوچوان اور سوار کو دھوکے میں رکھ کر تانگے کے قریب پہنچ جائے۔ اور بے تانگے والا، خرگوش کی اولاد، عمران تانگے کے قریب پہنچ کر گرجا۔ صاحب بہت جگہ ہے، تانگے والے نے کہا۔ کدھر جگہ ہے؟ عمران کار سے اتر کر چیخا۔ بڑھاؤ، سڑک کے نیچے اتار دو۔ وہ تانگے کی پچھلی سیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ تو زبردستی کی بات ہے جناب، تانگا والا بھی جھلا گیا۔ عمران پچھلی سیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ سے بولا، سرکار مجھے لیڈی تنویر نے بھیجا ہے۔ بوڑھا کھانس کر رہ گیا۔ میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں، عمران نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی پیشانی سے آ لگی۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ بوڑھا آہستہ سے پرسکون آواز میں بولا، مورنیا سلانیوں کو کتیوں کی موت مرنا پڑے گا۔ یہ بوڑھے غزالی کا فیصلہ ہے، لیکن میں نے کیا قصور کیا ہے چچا غزالی؟ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں، اس لیے تو ٹریگر اپنی جگہ پر ہے، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ایک رنگین سا سوراخ ہو جاتا اور میں اسے دیکھ کر خوش نہ ہو سکتا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ اتنے میں تانگے والے نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن بوڑھے نے اسے روک دیا۔ مورنیا سے کہہ دو کہ غزالی بچہ نہیں ہے۔ میں کسی مورینا کو نہیں جانتا چچا غزالی، مجھے تو لیڈی تنویر نے بھیجا ہے۔ اگر انہی کا نام مورنیا ہے تو مجھے مونا باؤ ریلوے اسٹیشن تک پیدل جانا پڑے گا۔ لیڈی تنویر؟ بوڑھا آہستہ سے بڑبڑایا۔ لیڈی تنویر؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ سر تنویر کی بیوی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ دیکھیے میں نہ کہتا تھا۔ ہاں، لیکن اس نے کیوں بھیجا ہے؟ بس سمجھ جائیے۔ عمران ہنسنے لگا۔ کیا سمجھ جاؤں؟ وہی نا جو لیڈی تنویر آپ سے چاہتی ہے۔ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ بوڑھا بولا، وہ چاہتی ہے کہ آپ اس شہر سے چلے جائیں۔ آہا، میں سمجھا، بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اسے فکر مند نہ ہونا چاہیے۔ اس سے کہہ دینا کہ غزالی اپنے ایک ذاتی کام سے یہاں آیا ہے، جس دن ہو گیا یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مگر آپ سر تنویر سے ملتے کیوں نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہی رہتا ہے۔ لیڈی تنویر سے کہہ دینا غزالی دل کا برا نہیں ہے۔ اچھا، اب تم جا سکتے ہو۔ بوڑھے نے ریوالور کی نالی اس کی پیشانی سے ہٹا لی۔ مگر چچا، سر تنویر تو برابر آپ کے کمرے کا دروازہ پیٹتے رہے ہیں۔ سر تنویر؟ بوڑھے کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں چچا غزالی، میں نہیں سمجھ سکتا۔ بوڑھا بڑبڑا کر رہ گیا۔ سر تنویر آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ بس جاؤ، جو کچھ میں نے کہا ہے لیڈی تنویر سے کہہ دینا۔ تانگا بڑھاؤ۔ گھوڑے کی ٹاپیں سناٹے میں گونجنے لگی اور عمران نے چلا کر بولا، چچا غزالی تمہارے پاس ریوالور کا لائسنس تو ہوگا ہی؟ ہاں بھتیجے، تم مطمئن رہو۔ بوڑھے کی آواز آئی۔ تانگا کافی دور نکل گیا تھا۔ دوسری صبح کے اخبارات الفریڈ پارک میں کسی ادھیڑ عمر آدمی کی لاش برآمد ہونے کی کہانی سنا رہے تھے۔ پولیس کا نظریہ اور دیگر تفصیلات نمایاں طور پر شائع ہوئی تھیں۔ عمران اپنے طلاق آفس میں اداس بیٹھا تھا۔ روشی دوسرے کمرے سے نکل کر غالباً چائے کا پیکٹ لینے کے لیے باہر جانے لگی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اپنی داہنی ٹانگ آگے بڑھا دی۔ روشی بے خبر تھی، اس لیے پیٹ کے بل دھڑام سے فرش پر جا گری۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ سے عمران کے لیے کچھ ناشائستہ قسم کے جملے نکل گئے، مگر عمران نے کچھ اس طرح گردن ہلا کر ٹھیک ہے کہا جیسے اس نے روشی کے الفاظ سنے ہی نہ ہوں۔ وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہونٹ سے کوڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشی کے فرش سے اٹھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم بالکل جنگلی ہو، روشی پیر پٹک کر چیخی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں جاؤں گی، روشی نے روحان سی آواز میں کہا اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی۔ عمران نے بڑے مغموم انداز میں اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی اور سامنے پھیلے ہوئے اخبار کی طرف دیکھنے لگا۔
कुछ देर बाद उसने रोशी को आवाज दी। नहीं आऊंगी। रोशी ने दूसरे कमरे से ललकारा। तुम जहन्नुम में जाओ। मुझे रास्ता नहीं मालूम रोशी डियर, वरना कभी का चला गया होता। तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनोगी, मुझे मत बोलो। इमरान को उठकर उसी कमरे में जाना पड़ा जहां रोशी थी। वो मसहरी पर ऊंधी पड़ी हुई नजर आई। आखिर बात क्या है? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, चले जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती? औरतों से इस किस्म का मजाक करते हो, बिल्कुल जंगली हो। अब मौका पर कोई और ना मिले तो मैं क्या करूं? इमरान ने मखमूम लहजे में कहा, वैसे मैं हद्दुल इम्कान यही कोशिश करता हूं कि औरतों से ये क्या किसी किस्म का भी मजाक ना करूं। यहाँ से चले जाओ। रोशी और ज्यादा झला गई। तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया था कि भेड़िए के बच्चे को मेमना कहते हैं या भैंस के बच्चे को, और आदमी के बच्चे को सिर्फ बच्चा क्यों कहते हैं, आदमी क्यों नहीं कहते? रोशी उठ बैठी। चंद लम्हे इमरान को घूरती रही, फिर कुछ कहने वाली थी कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बैरूनी दरवाजा बंद था। कौन है? इमरान ने बुलंद आवाज में पूछा। मैं हूँ फयाज। तुम आ गए बेटा? इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक लम्हा के लिए रुका, फिर एक तरफ हटकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही फयाज अंदर दाखिल हुआ, इमरान ने दाहिनी टांग उसके पैरों में उलझ दी और फयाज बेखबरी से फर्श पर ढेर हो गया। लेकिन वो दूसरे ही लम्हा में उलटकर इमरान पर आ पड़ा। ये और बात है कि उसकी हरकत से भी तकलीफ इसी को हुई, क्योंकि इसका घूंसा इमरान की बजाय दीवार पर पड़ा था। इमरान एक तरफ हटकर ललकारा, आपके लिए चाय लाऊं? चाय के बच्चे, ये क्या हरकत थी? फयाज ने झपट कर इसका गिरेबान पकड़ लिया। हाय हाय, इमरान आहिस्ता से बोला, वो देख रही होगी। फयाज ने इस्तरारी तौर पर इसका गिरेबान छोड़ दिया और बौखला कर दूसरे कमरे की तरफ देखने लगा। रोशी सचमुच दरवाजे में खड़ी दोनों को हैरत से देख रही थी। ओहो रोशी, इमरान जल्दी से बोला, इनसे मिलो। ये कैप्टन क्याज और अरे लाहौल कैप्टन फयाज हैं, मेरे गहरे दोस्त। हाँ, और ये मेरी पार्टनर रोशी, सीनियर पार्टनर समझो। क्योंकि रोशी एंड को। फयाज ने जल्दी में 2-4 रस्मी जुमले कहे और कुर्सी में गिरकर हाँफने लगा। वो अब भी इमरान को कहर आलूद नजरों से घूरता रहा। रोशी, इमरान बुलंद आवाज में बुड़बड़ाया, अब तो चाय का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़े आदमी है, CBI के सुपरिटेंडेंट। ओहो, रोशी मुस्कुरा कर बोली, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी, फयाज जवाबन मुस्कुराया। इमरान ने उर्दू में कहा, फयाज साहिब ख्याल रहे, मैं तलाक दिलवाने का धंधा करता हूँ। जरा अपनी मुस्कुराहट ठीक करो, होंठों के गोशे कपकपा रहे हैं और ये जिनसी लगावट की अलामत है। यकीन मानो मैं तुम्हारी बीवी से 1 पैसा फीस नहीं लूंगा, तुम केस भी तो दिलवाओ, ऐसी खिदमत करूंगा कि तबीयत खुश हो जाए तुम्हारी। फयाज कुछ न बोला। इमरान के खामोश होते ही रोशी ने पूछा, क्यों कैप्टन? CBI में इमरान का क्या ओहदा था? मेरा मातहत था, फयाज ने अकड़ कर कहा। अरे खुदा गारत करे, इमरान बुड़बुड़ाया। अच्छा, मैं तुमसे समझ लूंगा। रोशी हंसती हुई दूसरे कमरे में चली गई। हाँ, अब बताओ। फयाज आस्तीन चढ़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, किसी दिन मैं तुम्हारी शेखी निकाल दूंगा। शेखी नहीं, पठानी बोलो, मैं पठान हूँ, समझे? तुम कोई भी हो, लेकिन ये क्या हरकत थी? आखिर कब तक तुम्हारा बचपना बर्दाश्त किया जाएगा? तुम कैप्टन फयाज, तुम इसे बचपना कह रहे हो? मुझे हैरत है, अगर तुम शर्लक होम्स के ज़माने में होते तो तुम्हें गोली मार दी जाती, और बिल्कुल शर्लक होम्स ही की तरह जानता हूँ तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो। क्यों आया हूँ? फयाज ने पूछा। मैं ये भी बता सकता हूँ कि किस तरह आए हो। किस तरह आया हूँ? सर के बल चलते हुए। अब पूछो डॉक्टर वॉटसन की ये बात मैंने इतने वसूख के साथ क्यों कही है। जवाब ये है प्यारे वॉटसन कि मुझे तुम्हारे बालों में कुछ नन्हे मुन्ने तिनके नजर आ रहे हैं। देखा है ना, यही बात। बोर मत करो, फयाज ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं एक जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं आज का अखबार पूरा पढ़ चुका हूँ, इमरान संजीदगी से बोला, हत्ता कि वो इश्तहारात भी पढ़ डाले हैं जिन्हें शादीशुदा आदमियों के अलावा और कोई शरीफ आदमी नहीं पढ़ता। तो तुम समझ गए? फयाज मुस्कुराया। मैं बिल्कुल समझ गया, न सिर्फ समझ गया बल्कि काम भी शुरू कर दिया है। क्या मतलब मैं जरूर बताता, मगर इसी सूरत में अगर घूंसा दीवार पर पड़ने की बजाय मेरे जबड़े पर पड़ जाता। खैर होगा, मुझे क्या, जो बोएगा सो काटेगा, और लात चले है बंजारा वाली मिसल थी। फयाज साहिब, अरे रोशी,
चाय? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। हालांकि तुम पिछली रात से अब तक जागते रहे हो और अभी तुमने नाश्ता भी नहीं किया। रोशी कटलस बड़े अच्छे बनाती है, हालांकि अभी वो भी इसी फर्श पर ऊंधे मुंह गिर चुकी है। वो भी? फयाज ने हैरत से दोहराया। इमरान, तुम आदमी हो या जानवर? वो भी इस वक्त से मतवातर यही एक सवाल दोहरा रही है। इमरान ने लापरवाही से कहा, मैं खुद को हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश करूंगा, ख्वाह वो एक एंग्लो बर्मेज लड़की हो, ख्वाह कैप्टन फयाज। और अब मुझे यकीन आ गया है कि इस लाश के मुतल्लिक तुम लोगों का नजरिया कतई गलत है। क्या मतलब? फयाज संभल कर बैठ गया। तुम्हारा ये नजरिया है कि मरने वाला किसी चीज से ठोकर खाकर गिरा, इसकी पेशानी में चोट आई और कोई जहरीला मादा इतनी तेजी से जख्म करके खून के रास्ते सरायत कर गया कि गिरने वाले को उठने का मौका न मिला। मैं ये नहीं कहता कि मौत के मुतल्लिक डॉक्टरों की राय गलत है। इस तरह कई का मर जाना बाद अज कयास नहीं, लेकिन यह ख्याल कि वो ठोकर खाकर गिरा, उसकी पेशानी जख्मी हो गई। मगर नहीं ठहरो, क्या उसकी लाश किसी ऐसी जगह मिली जहां जमीन हमवार ना हो, या गिरने की सूरत में इसका सर किसी ऐसी चीज से टकराया हो जो जमीन की सतह से ऊंची हो? नहीं, लाश अल्फ्रेड पा की एक रोश पर मिली थी और वहां दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जमीन के सतह से ऊंची हो, और जाहिर है कि रविशें भी नाहमवार नहीं होती। तब मेरी जान, ये बताओ कि तुम्हारी पेशानी क्यों नहीं जख्मी हुई? और रोशी भी बेदाग पेशानी लिए घूम रही है। तुम दोनों ही बेखबरी में काफी दूर गिरे थे, बताओ? फयाज पलकें झपकाने लगा। मेरा दावा है, अगर इसी वक्त तुम दोनों के नजदीक कोई दीवार या कुर्सी या दरख्त का तना होता तो यकीनन तुम्हारी पेशानियां जख्मी हो जाती। बात तो ठीक है, मगर क्यों? फितरत, अपनी हिफाजत आप करने की जबिल्लत। जब हम मुंह के बल गिरते हैं तो गैर इरादी तौर पर हमारी हथेलियां या कोहनियां जमीन से टिक जाती हैं। इस तरह फितरत खुद ही हमारे जिस्म के बेहतरीन और सबसे ज्यादा कारामद लेकिन कमजोर हिस्सों की हिफाजत कराती है। यार, बात तो ठीक कह रहे हो। फयाज सर हिलाकर बोला, रोशी, चाय? इमरान ने फिर हाँक लगाई और फिर आहिस्ता से बोला, यार एक आध केस लाओ। इस शहर की औरतें बड़ी बेहिस मालूम होती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 1 माह तक रोजाना इश्तिहार देता हूँ, क्या ख्याल है? इमरान, तुम इसे बेवकूफ़ बनाना जो तुम्हें अहमक समझता हो। इसे भला मैं क्या बेवकूफ़ बना सकूंगा? मैं इसलिए आया था कि तुम लाश देख लेते। क्या वो अब भी जाए वारदात पर है? नहीं, मुर्दा खाने में है, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जब वो मौका पर वारदात से हटा ली गई है तो देखने से क्या फ़ायदा होगा? तुम चलो तो नाश्ता कहीं और करेंगे तो वो ठीक है, मगर खाएंगे कहाँ से? भला तुम्हारे इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा? बस उठो, बोर मत करो। इस वक्त तुम पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर खैर इस गिरने के सिलसिले में एक काम की बात मालूम हुई। मगर तुमने इस बेचारी को भी गिराया था। क्या करता, मजबूरी थी, तजुर्बा तो करना ही था। बड़े सुअर हो। अच्छा, इमरान उठता हुआ बोला, मैं चलूंगा, मगर ये ना भूल जाना कि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। और हाँ, पहले हम अल्फ्रेड गार्डन चलेंगे। इमरान जानता था कि रोशी इस वक्त नाश्ता हरगिज तैयार नहीं करेगी, इसलिए फयाज से शर्मिंदगी उठाने से यही बेहतर है कि यहाँ से कहीं टहल जाए। बाहर आकर उन्होंने एक छोटे से रेस्तोरां में नाश्ता किया और अल्फ्रेड गार्डन की तरफ रवाना हो गए। हाँ, कल वो लेडी तनवीर क्यों आई थी? फयाज ने पूछा। कहने के लिए, अगर सर तनवीर हमारी फर्म की खिदमत हासिल करना चाहे तो इसे फौरन मुतला कर दिया जाए। गालिबन लेडी तनवीर तलाक नहीं लेना चाहती। बकवास है, तुम बताना नहीं चाहते। भला मैं तुम्हें अपने बिजनेस की बातें कैसे बता सकता हूँ? वो अल्फ्रेड गार्डन पहुँच गए और फिर फयाज उसे इस जगह ले गया जहाँ लाश पाई गई थी। यही जगह है, ठीक यहीं पर लाश मिली थी, औंधी पड़ी थी। इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी ये कैसे मालूम कर लिया गया कि वो कोई जहरीला मादा था जो पेशानी के जख्म के जरिए जिस्म में सरायत कर गया? फिर और क्या कहा जा सकता है? इसके अलावा जिस्म पर और कोई निशान नहीं, गला घोंट कर भी नहीं मारा गया। तुमने यहाँ से सुर्ख बजरियां तो जरूर समेटी होंगी। क्यों नहीं तो? यार, तुम महकमा सुराग रसानी के सुपरिटेंडेंट हो या? मैं गधा हूँ और तुम्हें इससे कोई सरोकार ना होना चाहिए। मैंने इसे जरूरी नहीं समझा था कि यहाँ से बजरियां समेटी जाएं, क्योंकि मुझे भी इस पर यकीन नहीं है कि वो यहीं और इसी जगह ना मरा होगा।
آخر وہ کتنا سریع الاسر زہر تھا کہ مرنے والا گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش نہیں کر سکا۔ لاش کو میں نے یہاں پڑا دیکھا تھا، اس کی پوزیشن تو صاف یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ گرنے کے بعد ہل بھی نہ سکا ہوگا۔ ویری گڈ، پھر تم مجھے کیوں لائے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ لاش یہاں پھینکی گئی ہوگی، موت کہیں اور واقع ہوئی ہوگی۔ اب بہت زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کرو، عمران مسکرا کر بولا۔ اس کی موت یہاں بھی واقع ہو سکتی ہے اور اسی جگہ گر کر مر بھی سکتا ہے۔ بات کا بتنگڑ میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اچھا میں بات بناتا ہوں، تم بتنگڑ بنانے کی کوشش کرو۔ فیاض صاحب، یہ الفریڈ گارڈن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں سانپ بکثرت ہے۔ فرض کیجئے اسے سانپ نے کاٹا ہو، ابھی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، زہر والی بات عقل گد بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تو کہو کہ میں نے اس وقت ناشتہ بھی تمہارے پیسوں سے کیا ہے، ورنہ بتاتا مجھے خوامخواہ یہاں تک دوڑایا ہے تو اب لاش بھی دکھاؤ۔ بہرحال تم مجھ سے متفق نہیں ہو، لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور وہ سرکاری مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاش غالباً پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی تھی کیونکہ مردے ڈھونے والی گاڑی کمپاؤنڈ میں موجود تھی۔ فیاض نے عمران کو دھکا دے کر آگے بڑھایا اور پھر مردہ خانے میں پہنچ کر فیاض نے جیسے ہی لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بڑی تیزی سے لاش پر جھک پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین ہو گیا کہ وہ لاش اس بوڑھے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی جس کا پچھلی رات وہ تعاقب کر چکا تھا۔ یہ پیشانی کا زخم دیکھو، فیاض نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں، عمران سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اچھا، خیر پرواہ نہیں، اب تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے ہو شاید دنیا میں تم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہو، نہیں تو میرا خیال ہے کہ تم نہ تو عقل مند ہو اور نہ مغرور۔ چلو چھوڑو، جسم نیلا پڑ گیا ہے، زہر ہی ہو سکتا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی زہر جسم میں کیوں داخل ہوا، لہٰذا رپورٹ ملنے تک اگر ہم اس معاملے کو ملتوی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے کیا ہے، اس کے جسم پر لباس موجود ہے؟ نہیں، لباس لیبارٹری میں ہے۔ لیبارٹری میں کیوں؟ شبہ ہے کہ کپڑوں پر لانڈری کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آہا، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کیا اس کی جیب سے کچھ کاغذات وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں؟ کمال کرتے ہو، جن لوگوں نے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے کاغذات وغیرہ کیوں چھوڑے ہوں گے؟ نشانات؟ اوہو، ہو سکتا ہے کہ نشانات خود مرنے والے ہی نے اپنی زندگی میں مٹوائے ہوں۔ اچھا بس ختم کرو، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ورنہ ابھی یہ بھی کہو گے کہ مرنے والا پرنس آف ڈنمارک ہے۔ وہ دونوں مردہ خانے سے باہر آ گئے۔ اچھا میں چلا، عمران نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مجھے مطلع کرنا اگر ضرورت سمجھی گئی۔ فیاض نے بولا، اس کے لہجے میں بھی کبیدگی موجود تھی۔ مجھ سے الجھو گے تو سر پکڑ کر رونا پڑے گا۔ جانتے ہو کہ میری فرم کس قسم کا کاروبار کرتی ہے؟ اتنے میں وہاں مردے خانے کا انچارج آ پہنچا۔ اس نے فیاض سے گفتگو شروع کر دی اور عمران وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں فیاض کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اسے سٹارٹ کیا۔ فیاض نے دیکھا اور صرف منہ پھیلا کر رہ گیا۔ مردہ خانے کے انچارج کے سامنے وہ بے تحاشا دوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے عمران کی اس حرکت کو دیکھتا رہا۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی کمپاؤنڈ سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران لیڈی تنویر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم یہاں کیوں چلے آئے؟ لیڈی تنویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آخری اطلاع دینے کے لیے۔ عمران اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ لیڈی تنویر کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ غزالی چلا گیا۔ اوہ اچھا۔ لیڈی تنویر ایک طویل سانس لے کر بیٹھتی ہوئی بولی، اچھا تو تمہاری بقیہ رقم پرسوں تک پہنچا دی جائے گی، لیکن اب میں رقم لے کر کیا کروں گا؟ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس بیچارے کا پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے اور شاید اس وقت ڈاکٹروں کے چاقو اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں گے۔ میں کچھ نہیں سمجھی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے اسے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے تھے، لیکن پولیس کو ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ ویسے اب میرا ارادہ ہے کہ پولیس کو اس سے متعلق اطلاع کر دوں۔ لیڈی تنویر تھوڑی دیر تک چپ چاپ ہانپتی رہی، پھر بے دقت بولی، تو اب تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے اسے قتل بھی کر سکتے ہو۔ اچھی بات ہے،
जब पुलिस आपसे पूछगिछ करेगी तो आप बता दीजिएगा, कह दीजिएगा कि मैंने ही इसे कत्ल किया है। फिर पुलिस मुझसे पूछेगी तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे इस पर लेडी तनवीर ने मजबूर किया था। फिर लेडी तनवीर को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों मजबूर किया था, वो क्यों चाहती थी कि गजाली यहाँ से चला जाए और इतने से काम के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम क्यों दी थी। फिर गजाली के पड़ोसी सर तनवीर को भी पहचान लेंगे जो घंटों इसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश किया करते थे। फिर क्या होगा, लेडी तनवीर और फिर आपको वो आदमी शनाख्त करेगा जो इस दिन मेरे ऑफिस में मौजूद था और इसने आपको वहाँ देखकर हैरत भी जाहिर की थी। आप जानती हैं वो कौन था? नहीं जानती? अच्छा तो सुनिए, वो CBI का सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज था। लिहाजा आप पुलिस से ये भी नहीं कह सकती कि आप मुझसे वाकिफ नहीं हैं। तुम क्या चाहते हो? लेडी तनवीर ने भराई हुई आवाज में कहा। हकीकत मालूम करना चाहता हूँ, गजाली कौन था और इस तरह क्यों मारा गया, वो किन लोगों से हाइफ था। और वो इमरान अपना सर सहलाने लगा। उसे वो नाम याद नहीं आ रहा था जिसका हवाला पिछली रात दौरान गुफ्तगू में गजाली ने दिया था। ऐसा नाम जो किसी औरत का ही हो सकता है, बतालवी तर्ज का नाम। मैं नहीं जानती कि वो किन लोगों से हाइफ था, मगर ठहरो, तुम बहुत चालाक हो। मुझे यकीन है कि गजाली जिंदा है। तुम मुझसे मेरा राज उगलवाना चाहते हो। क्या आपने आज का अखबार नहीं देखा? देखा है, मगर तुम एक दूसरे मामले को भी इस सिलसिले में इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, हो तो सकता है, शायद मैं नाम भी गलत बता रहा हूँ। नहीं, नाम ठीक है, तुम इससे मिल चुके होगे। अगर आप लाश देखना चाहती हो तो मैं पोस्टमार्टम रुकवा दूँ। हाँ, मैं देखूंगी, लेडी तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा जिससे ये मुतरश्शे हो रहा था कि उसे इमरान की बात पर यकीन नहीं आया। अच्छी बात है, क्या आप मुझे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगी? नहीं। अच्छा तो मेरे साथ चलिए। नहीं जाऊंगी। तुम शौक से मेरे मुतल्लिक पुलिस को इत्तला दे सकते हो, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे? हो सकता है कि जो आदमी तुम्हारे दफ्तर में उस दिन मौजूद था CBI का ऑफिसर रहा हो। मैं तुम्हारी इत्तला के लिए बता रही हूँ कि CBI के डायरेक्टर जनरल रहमान साहिब मेरे गहरे दोस्तों में हैं। तब तो मैं ज़रूर आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि रहमान साहिब मेरे गहरे दुश्मनों में से हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मजबूरन मुझे फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग ब्यूरो कायम करना पड़ा। अच्छा, शायद तुम गलत समझे हो, मैं अभी तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें फ़ोन करती हूँ। साथ ही ये भी कह दीजिएगा कि ब्लैकमेलर अली इमरान MSc PhD है। अली इमरान? लेडी तनवीर चौंक कर उसे घूरने लगी। अली इमरान? तुम बकवास कर रहे हो, ये रहमान साहब के लड़के का नाम है और वो भी इसी महकमे में कभी था। इमरान ने जुमला पूरा करते हुए कहा, लेकिन डायरेक्टर जनरल साहब ने इसका पत्ता काट दिया। अब वो शहर की सारी औरतों से उनके शोहरों का पत्ता कटवा देगा। क्या तुम वाकई इमरान हो, यानी रहमान साहब के लड़के? ख़त्म भी कीजिए लेडी तनवीर, मुझसे गजाले की गुफ्तगू कीजिए। आप ये भी जानती होंगी कि खैर जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं जानती, तुम जा सकते हो। यकीन करो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, लेडी तनवीर ने कहा और उठकर ड्राइंग रूम से चली गईं। इमरान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से फयाज को फ़ोन किया कि वो इसके लिए काम शुरू कर चुका है, लिहाजा वो अब अपना पेट्रोल फूंकने की बजाय इसकी मोटरसाइकिल रगड़ी देगा। फयाज ने फ़ोन पर ही उसे बेनक़्त सुनाई, लेकिन इमरान हर गाली पर उसकी हिम्मत अफजाई करता रहा। उसके बाद वो मजदूरों की उस बस्ती की तरफ रवाना हो गया जहां गजाली ठहरा हुआ था। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखा। कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वहां सफाई नजर आई। एक दिन का भी नहीं दिखाई दिया। पड़ोसियों में से एक ने, जो अपनी रात की ड्यूटी खत्म करके सुबह 4 बजे वापस आया था, बताया कि गजाली के कमरे के सामने एक बड़ी सी वैन खड़ी हुई थी। इस पर गजाली का सामान रखा जा रहा था। ये वाकया सुनकर एक बार फिर इमरान खाली कमरे में वापस आ गया और चारों तरफ मुतजस्सिस नजरों से देखने लगा, और फिर अचानक दरवाजे की तरफ मुड़कर तेजी से झपटा। दूसरे लम्हे में वो झुककर सिगरेटों का एक पैकेट उठा रहा था। पैकेट खाली था। वो इसे लट पलट कर देखने लगा, फिर इसे रोशनी में देखने के लिए दरवाजे के सामने आ गया। इस पर पेंसिल से बारीक हरूफ में जगह जगह कुछ तहरीर था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने शुगल के तौर पर कुछ लिखा हो। हर जगह यकसा तहरीर, लेकिन रस्मुल खत इमरान के समझ में नहीं आ सका।
वैसे इसका ख्याल था कि वो रूसी रस्मुल ख़त भी हो सकता है। हर जगह हरूफ की तरतीब यकसां थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने बेख्याली में जगह जगह कोई एक ही चीज़ लिखी हो। इमरान ने पैकेट जेब में डाल लिया। कमरे में इसके अलावा इसे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। उसे तवक्को थी कि प्रोफेसर सईद, जो मगरबी ज़ुबानों का माहिर था, उस पर ज़रूर रोशनी डाल सकेगा। प्रोफेसर सईद इमरान के दोस्तों में से था। इसने इमरान के ख्याल की तायद की। तहरीर रूसी ही रस्मुल ख़त में थी। वो दरअसल किसी आर्टामोनोव के दस्तखत थे। यूनिवर्सिटी से वापसी पर इमरान सोच रहा था कि बाज़ लोग बेकारी के लम्हात में यूं ही शुगल के तौर पर अमूमन अपने ही दस्तखत किया करते हैं। बस कलम या पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। जो चीज़ भी सामने पड़ गई बस उस पर दस्तखत हो रहे हैं। फिर वो गजाली के मुतालिक सोचने लगा। वो रूसी तो क्या, रूस से ताल्लुक़ रखने वाले किसी दूसरी रियासत का भी बाशिंदा नहीं मालूम होता था। ख़त-ओ-ख़ाल के एतबार से वो अपनी ही तरफ का बाशिंदा हो सकता था। अब इमरान ने फयाज के दफ्तर की राह ली और वहाँ कुछ मजीद गालियाँ उसकी मुंतज़र थीं। उसे देखकर फयाज आपे से बाहर हो गया। इनको आता है प्यार पर गुस्सा। इमरान ने कान पर हाथ रखकर हाँक लगाई। मैं धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा, समझे? लोग यही समझेंगे कि तुम्हारी बीवी अनकरीब तलाक लेने वाली है। वैसे अगर तुम बाहर से आने वालों में से किसी के आर्टामोनोव का पता लगा सको तो दीन दुनिया में भी भला होगा। बस तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, खैरियत इसी में है। अच्छा पेट्रोल के दाम ही दे दो, क्योंकि अब टंकी में थोड़ा ही रह गया है। क्या? फयाज सुंचला गया। अब मोटरसाइकिल को हाथ भी ना लगाना, हाथ सिर्फ हैंडल पर ही रहेंगे। इसके अलावा अगर कहीं लगवाऊं तो कटवा देना। वैसे मैं आर्टामोनोव के मामले में संजीदा हूँ। इसका ताल्लुक गजाली की मौत से भी हो सकता है। कौन गजाली? क्या बक रहे हो? वही गजाली जिसकी लाश तुमने मुझे दिखाई थी। फयाज कुर्सी की पुश्त से टिककर इमरान को घूरने लगा। फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, खामखा मुझ पर रोब डालने की कोशिश ना करो। तुम लेबोरेटरी से आ रहे हो और वहीं से तुम्हें ये नाम मालूम हुआ है, मगर ये जरूरी नहीं कि वो अंगश्तरी मरने वाले ही की हो। उसके कोट की अंदरूनी जेब का अस्तर फटा हुआ था। हो सकता है कि उसने अंगश्तरी कभी जेब में डाली हो और वो सुराख से कोट के अस्तर और अपर के दरमियान पहुंच गई हो। अगर वो खुद इसकी होती तो जेब में डाले रखने की क्या तुक हो सकती है। वैसे मैं लेबोरेटरी वालों से सख्त तरीन अल्फाज में जवाब तलब करूंगा, क्योंकि वो इस किस्म की इतलाआत इन लोगों को क्यों दे देते हैं जो महकमे से ताल्लुक नहीं रखते। उनसे ये भी पूछना है कि उन्होंने मुझे मरने वाले के घर का पता क्यों बता दिया। ख्वामख्वाह बात बनाने की कोशिश ना करो। अंगूठी का क्या किस्सा है प्यारे फयाज? इमरान उसे चमकार कर बोला। फयाज चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, क्या ये हकीकत है कि तुम्हें ये नाम लेबोरेटरी से नहीं मालूम हुआ? ये हकीकत है। वैसे अगर तुम लेबोरेटरी इंचार्ज से जो तुम्हें बेजार ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुमने आज मुझे बहुत गालियां दी हैं और मैं इसके बदले में यकीनन ये चाहूंगा कि कोई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ कर रख दे। फिर तुम्हें ये नाम कैसे मालूम हुआ? बस हो गया। तुम फिलहाल इसकी परवाह ना करो और ये हकीकत है कि मैं इसके ठिकाने से भी वाकिफ हो गया हूँ। अगर यकीन ना आए तो मेरे साथ चलो। लाश की तस्वीरें गालिबन तैयार होकर तुम्हारे पास आ गई होंगी। हाँ, आ गई हैं। क्यों? मैं इसके पड़ोसियों से तस्दीक करवा दूंगा। क्या तुम संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे हो? ओहो, क्या तुम ये समझते हो कि मैं मुफ्त में तुम्हारा पेट्रोल फूंकता फिरा हूँ? नहीं डियर, ऐसी बात नहीं। चलो उठो, लेकिन लाश के चेहरे का क्लोजअप जरूर साथ ले लेना ताकि तुम्हारा इत्मीनान हो सके। आखिर तुमने किस तरह पता लगाया? इल्हाम हुआ था। तुम्हें इससे क्या गर्ज? गजाली के इन पड़ोसियों ने जो इसे देख चुके थे, इसकी तस्वीर देखकर इमरान के बयान की तस्दीक कर दी। फयाज ने उनसे बहुतीरे सवाल किए, लेकिन वो इससे ज्यादा ना बता सके जो कुछ उन्होंने इमरान को बताया था। अच्छा फयाज साहब, इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा, अब तुम आर्टामोनोव के मुतालिक मालूमात फराहम करो और तुम अपनी मोटरसाइकिल भी ले जा सकते हो। आर्टामोनोव कौन है? मेरा भतीजा है। तुम इसकी परवाह मत करो, ज्यादा बोर मत करो, नहीं तो मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा। फयाज से पीछा छुड़ाकर वो इन लोगों की तलाश करने लगा जिन्होंने पिछले दिन सर तनवीर को गजाली के दरवाजे पर दस्तक देते देखा था। इनमें से एक इसे जल्द ही मिल गया। इमरान दरअसल ये मालूम करना चाहता था कि गजाली से मुलाकात करने की कोशिश करने वालों में सर तनवीर के अलावा और कितने मुख्तलिफ आदमी थे। चूँकि इमरान भी पिछले दिन यहाँ मौजूद था, इसलिए सर तनवीर का हवाला देकर गुफ्तगू आगे बढ़ाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। और इसने बताया कि सर तनवीर के अलावा भी 2 आदमी यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने कभी दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वो बस दूर ही से कमरे की निगरानी किया करते थे।
ان کے حلقے کے متعلق وہ صرف اتنا ہی بتا سکا کہ ان کے چہروں پر گھنی سیاہ داڑیاں تھیں اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینکیں۔ میک اپ۔ عمران آہستہ سے بڑبڑایا، پھر بستی سے نکل کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور سر تنویر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ملک کے بہت بڑے برآمد کنندگان میں سے تھا اور اس کے دفاتر دنیا کے مختلف حصوں میں قائم تھے۔ اس تک پہنچنے کے لیے عمران کو خاصی دوریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح رسائی ہو ہی گئی۔ سر تنویر نے نیچے سے اوپر تک اسے گھور کر دیکھا۔ میں تعاون کا ٹیکہ لگانے کے لیے نہیں آیا، عمران احمقوں کی طرح بول پڑا۔ کیا بات ہے؟ سر تنویر کی گونجیلی آواز سے کمرے میں جھنکار سی پیدا ہو گئی۔ غزالی کی لاش، الفریڈ گارڈن، کل رات۔ عمران اس طرح بولا جیسے وہ سر تنویر سے خوفزدہ ہو۔ کیا بکواس ہے؟ عمران جیب سے غزالی کی تصویر نکال کر میز پر رکھتا ہوا بولا۔ اس کی لاش تو میں کیا کروں؟ محض آپ کی اطلاع کے لیے، وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بڑا پراسرار تھا۔ وہ لوگ اس سے بھی زیادہ پراسرار تھے جو اس کے لیے اس کی بستی کے چکر لگایا کرتے تھے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔